Good morning, student. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. In last lecture, we have discussed some fundamental concepts of probability. Okay. So in that we discussed the basic concepts which will useful to the probability to find the probability. So you can see on your screen. I quickly go through it. Okay. So in last lecture we have started 6.2. Okay, combinatorial probability. In that we discuss random experiments, certain events, impossible events, mutually exclusive event, independent events, exhaustive events, favorable events, sample space, rule number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yes or no, everybody? Yes, sir. Okay, up to here I discuss these things. Okay, all these things in all the classes. So today we start with this. Okay, the classical definition of the probability. So have you any idea about this, anybody? Any idea? Number of outcomes Number across of events. occurrence. Yes. Okay, good, very good. So you can see here the classical definition of probability means simple definition. Okay, what is it? Let n be the number of let n be the number of equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcomes of a random experiment. Okay, n हमने suppose किया. Let m be the number of the outcomes which are favorable to the occurrence of an event A. Okay, मीन्स हमने क्या किया, n था हमारे पास, अब उसमें से हमने m नंबर ऑफ फेवरेबल काउंट किए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर. ओके, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A occurring denoted by P of A. P of A means probability of A, event A is given by probability of A is equal to number of outcomes favorable to A divide by number of exhaustive outcomes means all outcomes is equal to m by n. Okay, m हमने यहाँ पे बोला है favorable and n our total. Okay, जो जितना भी हमने लिया था n number of. Okay, so this is your probability of A. So is there any doubt in this definition, anybody? No doubt, sir. No, sir. Okay, for probability, next definition. Okay, there are three different kinds of definition for the probability. दूसरा जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, but there is a limiting definition also, limit of m by n. Okay, जब ज्यादा, बहुत ज्यादा मीन्स आप यू कैन नॉट काउंट दैट. ओके, आउटकम्स, तब उसको लिमिटिंग साइंस में लिया जाता है. दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, बट वी ओनली डिस्कस दिस टू डेफिनेशन. सो आई डिस्कस विथ लिमिटिंग साइंस. लिमिट ऑफ m बाई n हो जाता है उसमें. ओके, और n टेंड्स टू आपको इन्फिनिटिव लेना है या फिर जो भी यहाँ पे आपको लेना है वहाँ पे आपको यहाँ पे लिमिटिंग साइंस दिया होगा. Okay, so this is the second definition. Now we go for the next definition, and it is very useful in real life situation as well as in our examples. So let S be a sample space. So हमने already sample space के बारे में discuss कर लिया था. What is the sample space? Anybody? Set of possible outcomes, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो वहाँ Yes, पे हमने sir. क्या आता है. ओके, सो दिस इज द सैंपल स्पेस. ओके, पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं. सो लेट एस बी ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड ए बी एनी इवेंट मींस ए इज एनी इवेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस मींस ए हमने उसमें से इवेंट लिया. ओके, तो अब इवेंट मींस क्या लिया, इसका सबसेट लिया है हमने. ओके, ए सबसेट ऑफ एस हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी P of A of the event A is defined as the real valued set function which associate a real value corresponding to a subset A of the sample space. मैंने बोला ऐसे कि जो सबसेट A है, A of sample space जो है, उसके लिए हम probability जो define करेंगे, it is nothing but a real value set function. वो क्या है, real value set function है जो ये दोनों को connect करता है. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एसोसिएट करता है ये दोनों को. डन? Yes, sir. Okay, so the probability PA satisfy the following three axioms. Number one क्या है, P of A
greater equal to 0. That means probability of any event A will be non-negative. Okay, और strictly greater equal to 0 होगा. Strictly greater equal to 0 का मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता है एंड जीरो नहीं हो सकता है. क्लियर एवरीबडी? फर्स्ट एज्यूम्स. Yes. Okay. Second, the probability of sample space, जो sample space हम ले रहे हैं उसका always 1 होगा. That means probability of sample space will be 1. Okay, that is the second axiom. And third axiom, if A1, A2 up to An are finite mutually exclusive events, then P of A1 union A2 union up to union An means ये सभी का आप यूनियन लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. Okay, that means P of A1 plus P of A2 plus up to P of An. So this is the third axiom of the probability. So is there any doubt in the probability? सर सैंपल स्पेस में कुछ समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करेंगे आप? सैंपल स्पेस हमने किया था बेटा. यस, फिर से रिपीट कर दे. तो अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस. मीन जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उसको अगर आप एक साथ ले लेंगे तो सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग द टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में सैंपल स्पेस मुझे डिफाइन करना है, तो क्या हो सकता है? इट शुड बी एच और टी, है ना, हेड और टेल. यस और नो? So this is the sample Yes, space for that event. Then, okay, got it? Yes, sir. Okay. Yes, okay. So probability. Now we go for the algebra of events. Algebra of events में जैसे हम SAT theory में करते थे ना, इससे यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम और वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, नथिंग एल्स. सो algebra of events. So if A and B are two events on sample space S, means sample space S, so everywhere, okay, in each definition you have to deal with the sample space. Probability के लिए sample space बहुत ही important रोल है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना. ओके, देन नंबर 1, A यूनियन B. अब ये A यूनियन B हम कब यूज करेंगे? सो अकरेंस ऑफ A और B, जहां पे इस टाइप की सिचुएशन हो रही कि दोनों में से कोई एक ही अकर हो रहा है ना, देन वी यूज A यूनियन B. अंडरस्टैंड? Yes, sir. A intersection B, that means occurrence of A and B दोनों एक साथ हो रहा है, then we use A intersection B. Keep in your mind, this is two fundamental algebra of events. Okay, अब इसी के ऊपर probability define किया जाता है. So addition theorem of probability, this is the first theorem. So यहाँ पे देखो, probability that either of event A or B will occur is given by, means यहाँ पे देखो A और B आया, तो A और B आया, that means कौन सा आएगा? इंटरसेक्शन और यूनियन? यूनियन. तो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका रूल है, हम आगे भी किए ना अभी प्रोबेबिलिटी में, कि वो दोनों का आपको क्या करना है? एडिशन करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो वही है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के ऊपर यहाँ कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इसलिए इंटरसेक्शन वाला भी आएगा. दैट मीन्स पी ऑफ A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए उसका रोल आता है. अगर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल if the event are mutually exclusive events. अब mutually exclusive event means क्या है कि एक दूसरे के ऊपर कुछ डिपेंडेंस नहीं है, that means probability of A intersection B is equal to 0 हो जाता है. और उसको आप ये डेफिनेशन में, ये इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन वी विल गेट P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा. मीन्स अगर इस टाइप की सिचुएशन में वहाँ पे दिखता है तो आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वहाँ से 0 हो जाएगा. देन दैट इज a new equation for you for the probability of A or B. Is there any doubt in this slide? Anybody? No doubt. No, sir. चलो एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल. ओके, यस, एनी प्रॉब्लम? सर यस, यस पार्थ.
वो ए ए इंटरसेक्शन बी वो 0 होगा तो हाँ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ, तो वही हुआ ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चलो फिर से देख लेते हैं। यस, कहाँ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, देखो यहाँ, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मींस डिसजॉइंट इवेंट्स। डन, नाउ गॉट इट, यस सर। है ना? ओके, इसीलिए तो यहाँ पे हमने पहले ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। ओके एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल, a card is drawn from a well shuffled pack of cards, मींस आपके पास एक कार्ड्स का पैक है। ओके, प्लेइंग कार्ड्स जो हम खेलते हैं ना, वही है। ओके, उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एंड एस। तो स्पेड मींस क्या होगा एंड एस मींस क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होगा स्प्रेड मींस? कलर सॉरी? मीन्स चार अलग अलग डिजाइन होते हैं ना सर, हाँ, तो में से मतलब वो स्पेड मतलब 13, मतलब चारों 13 रहते सर। यस, वेरी गुड। एंड एस? एस मीन्स सर वो जो चार रहते सर, हर एक इक्का। कलर में एक रहता है। एका। यस यस, वेरी गुड, इक्का। ओके, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले तो दोनों को इंडिविजुअली कुछ नेम देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम जब भी यूज करेंगे तो उसको थोड़ा सिंबॉलिक देंगे, और सिंबॉलिक जो यूज करते थे हम साइड थियरम, उसी तरीके से करेंगे तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, लेट ए एंड बी बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ स्पेड एंड एन एस रिस्पेक्टिवली। तो मीन्स अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन स्पेड चाहिए तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। यस और नो? यस सर। सो यहाँ पे देखो 52 C1 लिखा हुआ है, मीन्स उसमें से मुझे कितना सिलेक्ट करना है? 1 सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स 52 C1 टोटल हुआ। अब उसमें से फेवरेबल मीन्स हमको कितना चाहिए? तो जो स्प्रेड है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 13 C1 चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिंपल डेफिनेशन यूज किया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सो सर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 13 C1 मींस 13 डिवाइड बाय 52। आप ये सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन कहाँ से आया वो यहाँ पे दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। क्योंकि 52 में से आप कितना स्पेड के लिए सिलेक्ट कर सकते हो? 13, दैट मींस फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ओके, लेट मी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 52 तो हमारा टोटल है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसमें से मुझे एस लेना है, तो क्या होगा? वो तो कितने होते हैं टोटल? 4। 4 में से मुझे एक ही लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है एन, एन मीन्स एक ही हुआ है ना। सो 4C1, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 4/52। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर एनीबॉडी? नो डाउट। ओके, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन भी हो सकता है ना, मींस मैंने जो 13 यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट किए हैं उसमें से कोई एक तो यहाँ पे एस होगा कि नहीं, यस सर। है ना। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉसिबिलिटी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1C1, दैट मींस आवर फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, सो 1/52। अब ये पूरा हम डेफिनेशन में रखेंगे, मींस हमारी इक्वेशंस में रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर स्पेड और एन एस, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों के बीच में और आया, दैट मींस ए यूनियन बी आ गया। अब इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, इट गिव्स यू 4/13। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? नो डाउट सर। नो एनीबॉडी? सर, नो डाउट। सर यस यस बेटा, यस। सर ये क्वेश्चन में दिया गया होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है करके, या फिर हम लोग को फाइंड आउट करना होता है? नहीं नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तभी आपको बोला गया होगा। ओके। ओके, नहीं तो फिर या फिर ऐसी सिचुएशन आपको दिया होगा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस वहां पे लिखा होगा। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल ये तो आपने कहीं बहुत बार देखा होगा, है ना, मिसिसिपी, अट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है ना। तो यहाँ पे देखो चारों सेट भी यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अट्रैक्टिव आर रिटर्न डाउन एट रैंडम, मीन्स हमने कुछ भी तरीके से उसको ऐसे ही लिखना है रैंडम तरीके से, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 ऑल द टीज अकर टूगेदर, मीन्स जो टी यहाँ पे 3 है वो एक साथ आए, इसी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। एंड सेकंड में नो 2 टीज अकर टूगेदर, मीन्स 2 टी एक साथ में ना आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन जो दिया है उसमें टोटल कितने हैं यहाँ पे देखो तो लेटर्स 10 है एवरीबॉडी। ओके, अब 10 लेटर्स है मेरे पास, तो 10 लेटर्स को मुझे अरेंज करने के लिए कौन सा काउंटिंग रूल यूज करूंगा? 10 फैक्टोरियल होगा ना, थर्ड, यस थर्ड वाला। ओके, सो दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल हो गए। चलो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, वेरी गुड। अब 10 फैक्टोरियल हुआ, लेकिन हमारा काउंटिंग रूल नंबर 7 था, आई थिंक, यस 7 था या कौन सा, या 6 सॉरी 6। अब उसमें से क्या करते थे हम, जो रिपीटेशन था उसको डिवाइड में लेते थे, यस, है ना। तो यहाँ पर भी जितना रिपीटेशन है उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज अवर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक तो टी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल उसका पॉसिबिलिटी हो गया। एंड दूसरा कौन सा हो रहा है यहाँ पे? ए, यस ए 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड्स अट्रैक्शन इज दिस वन। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखना, नहीं तो नहीं पता चलेगा। कंसिडर 3 टीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो टी है यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे 10 लेटर्स थे। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जो 3 टी थे अट्रैक्शन में, वो मैं इसी को एक ही ब्लॉक बता देता हूँ कि दिस इज माई 1 लेटर। ओके, क्योंकि हमको क्या लेना है, ऑल द टीज अकर टुगेदर, ऐसा कंसीडर करना है ना नंबर 1 में एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। तो मैंने उसी को एक ही ब्लॉक कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अब टोटल कितने हो गए लेटर्स? अगर मैं तीनों टी को एक ही काउंट करूँ तो 8 हो गए। यस, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है। सो टी एज 1 लेटर देयर आर 8 लेटर्स कंसिडरिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल इज, मींस उसमें ए तो रिपीट हो सकता है ना, उसमें उसके लिए कुछ नहीं बोला है ना हमको, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो ए 2 बार रिपीट हो रहा है उसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ, है ना। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल डेफिनेशन, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ओके, तो यहाँ पे जो फेवरेबल है मीन्स हमको टी 3 साथ में चाहिए था, उसका फेवरेबल हुआ 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय total number, that means 10 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial, it gives me 1 by 15. So is there any doubt in the case number 1? no sir, no doubt. Any question? Okay, next, no 2 t's occur together, means मुझे 2 t एक साथ में नहीं आए, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, उसके अलावा टी के अलावा कितने लेटर्स बाकी बचे हमारे पास? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 लेटर्स बाकी बचे हैं, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अदर देन 3 टीज देयर आर 7 लेटर्स व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन, क्योंकि 7 में 2 A2 है ना, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा। ये तो अब पता चलना चाहिए आपको, यस और नो? यस सर। ओके, अब 8th प्लेस पे मुझे क्या करना है, टी को रखना है, लेकिन दूसरे टी के साथ वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, देयर आर 8 प्लेसेस, 6 बिटवीन द 7 लेटर्स एंड 1
ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अदर ऑन एक्सट्रीम राइट। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है टी के लिए। एक तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा यस, यहाँ पे देखो टी के लिए वो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ रह सकता है, या फिर ये 6 जो है उसके बीच में रह सकता है, यहाँ से जो फर्स्ट एंड लास्ट को निकाल के। यस और नो एवरीबॉडी? तब जाके डिस्टिंग हो जाएंगे ना वो तीनों ही तीनों। सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो ना। यस यस, चलो रिपीट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 प्लेसेस है, देयर आर 8 प्लेसेस, 6 बिटवीन द 7 लेटर्स एंड वन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अदर ऑन एक्सट्रीम राइट। तो यहाँ पे उसके फोकस मत करो, मैं जो बोलता हूँ वो यहाँ पे सिलेक्ट। यहाँ पे देखो ये थोड़ा आपको नहीं पता चलेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो अब मुझे टी को अरेंज करना है, और टी जो 3 है वो 3 को ऐसे अरेंज करना है तो तीनों साथ में ना आए, सॉरी 2 साथ में ना आए, है ना। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लेफ्ट हो सकता है वो, या फिर एक्सट्रीमली राइट हो सकता है, या फिर ये जो बीच में यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाजू में से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। यस और नो? अभी भी नहीं पता चला? सर यस बोलो। सर लेकिन हम अगर ऐसा करें कि 2 टी को साथ में ले ले और 1 माइनस वो कर दे तो भी चलेगा ना? यहाँ पे 2 टी नहीं लेना है, 2 साथ में लेना ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं, ओके, पर उसके बाद हम 1 से माइनस करेंगे ना जो वैल्यू आएगी तो। टोटल प्रोबेबिलिटी, हाँ वो तो कर सकते हैं आप। ओके यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो पता चल रहा है। आपका आइडिया सही है कि आप 2 वाले को आप फाइंड कर लो और उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, देन इट इज ओके। ओके, अब यहाँ पे सबको पता चला? बाकी सबको यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट पे रखना जरूरी है क्या? बीच में भी रख ही सकते हैं ना एक एक लेटर। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ये 6 के बीच में हो सकता है, या फिर एक्सट्रीमली लेफ्ट हो सकता है। यहाँ पे मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कहाँ पे, दैट इज माय डिस्कशन। ओके, तो 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। ओके, अब वो 3 पॉसिबिलिटी किसके लिए? तो 7 ऑलरेडी मेरे यहाँ पे लेटर थे, अब मैं एक टी को ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स द 8th वन आया ये। यस और नो? यस सर। ओके, तो वही दैट मीन्स 8 प्लेसेस में से मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स आई कैन राइट इन 8C3, क्योंकि मुझे क्या करना था, वो 8 प्लेस में से 3 को सिलेक्ट करना था। यस और नो? Yes, sir. यस सर। है ना। ओके, सो द नंबर ऑफ वेज इन विच नो टीज आर टूगेदर मीन्स कितना होगा? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो था, बाकी के 7 के लिए मल्टीप्लाई बाय 8C3। ओके, जो हमारे पास चॉइस है वो, दैट इज अवर फेवरेबल थिंग्स। ओके, जो हमको नो 2 टीज अकर टूगेदर करना है वो दिस इज अवर फेवरेबल थिंग्स। ओके, मीन्स हमको जो चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? नो 2 टीज अकर्स टूगेदर, favorable divide by total, that means 7 factorial divide by 2 factorial multiply by 8C3 divide by 10 factorial divide by 3 factorial 2 factorial, that is our total. So we get 7 by 15. Okay, that is the our required probability for no 2 t's occur together. Clear everybody? Understand? Do you understand student? सर वो Yes, 8 प्लेसेस sir. में कैसे अरेंज किया एक बार समझा। मीन्स यहाँ पे देखो क्या था कि हमको पता है, अभी आगे ही देखा था कि हम टी को एक ब्लॉक लेके 8 में हमने डिवाइड किया था उसको 10 को। अब यहाँ पे वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास 7 के ऑलरेडी मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। अब मुझे 3 टी को ऐसे एडजस्ट करना है कि 2 टी साथ में ना आए, तो वो 3 टी के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं 1 ऐड कर रहा हूँ टी, तो मेरा टोटल 8 हुआ, तो 8C31 दैट इज माई सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, मुझे 3 जगह में आपको टी को रिप्लेस करना है, दैट इज द 3 एंड 8 प्लेसेस मीन्स पहले आप
जैसे ही t रिप्लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा और नेक्स्ट आएगा वो 9th आएगा. सो 8C3 दैट इज माय टोटल नंबर ऑफ वेज ओके टू सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द t. तो वो हुआ. अब मेरे पास 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल था दैट इज माय फॉर 7 प्लेसेस, बट मल्टीप्लाई बाय करूंगा तब t वाला आएगा. दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 8C3. सो दिस इज माय फेवरेबल थिंग्स डिवाइड बाय टोटल थिंग्स. द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/15. नाउ इज इट ओके? यस और नो? Okay. 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 Then we go for the okay. So is there any doubt up to here? Anybody? नो डाउट सर. Probability में नहीं किसी को sir. डाउट नहीं है ना? Okay. चलो then we go for the next. It is our 6.3. Okay. So 6.3 is about the joint probability, conditional probability and Bayes theorem. Okay. So we will discuss about this in today's class also. So 6.3. So joint probability, conditional probability and Bayes theorem. तो joint probability means क्या है, conditional probability क्या है, वो पहले understand करेंगे. Then we go for the Bayes theorem if time permits. Okay. So joint probability. So it is simply the likelihood that two events will happen at the same time. Means वो दोनों event सेम टाइम पे हो रहा है, मीन्स कॉम्बिनेशन में हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी. सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. मीन्स यहाँ आगे हमने क्या किया था, एक थियरम देखा था और उसी का हमने यूज भी कर लिया है ना. कौन सा थियरम देखा था? एडिशन देखा था. यस और नो? यस सर. ओके. अब यही कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सटेंड किया मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब भी प्रोबेबिलिटी का आप एक्सटेंशन करते हो देन यू विल गेट योर टू न्यू कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके. तो यहाँ पे वही है, देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए expressed as P of A by the probability of event B that is expressed as P of B, and it is denoted by PA intersection B. That means probability of A intersection B is equal to, ये तो था हमारे पास एडिशन थ्योरम से. अब यहाँ पे अगर आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना चाहते हो देन इट विल आल्सो करेक्ट. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यस यहाँ पे गलती हो गया है, इंटरसेक्शन आएगा ना. ओके. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्लियर एवरीबॉडी? एंड वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट है तब आप उसका सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. सो इज देयर एनी डाउट जॉइंट प्रोबेबिलिटी में? नो सर. ओके. मीन्स वो जॉइंट में हो रहा होगा, वो दोनों जो इवेंट आप कर रहे हो वो जॉइंट होगा. आप देखो यहाँ पे 2 इवेंट्स तो होना ही चाहिए तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होंगे सबसे पहले तो, क्योंकि 2 इवेंट्स होगा तभी हम बोलेंगे ना कि ये दोनों इवेंट जॉइंट है. मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 इवेंट्स का होगा, जॉइंट के लिए, कंडीशनल के लिए, बैयस थ्योरम के लिए, सभी के लिए. ओके. सिंगल इवेंट के लिए हमने ऑलरेडी कर दिया, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी था. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. जो सिंपल प्रोबेबिलिटी मींस फर्स्ट एक इवेंट के लिए करना है या 2 इवेंट के लिए करना है तो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी से वो फाइंड कर सकते थे. लेकिन जब 2 इवेंट्स की बात आती है तो यू हैव टू गो विद द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम. और उससे भी अगर आगे आता है मींस 3 इवेंट से, 4 इवेंट से, 5 इवेंट से और इसे इनफाइनाइट इवेंट से या फाइनाइट इवेंट से, तो सभी के लिए यू कैन यूज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. सो डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट फर्स्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी? Yes sir. यस सर. चलो नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नेम जो है उसी तरीके उसका काम है. कंडीशनल मींस आपको एक इवेंट हो चुका है, उसका दूसरे के ऊपर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं. मींस कंडीशंस आपको दिया होगा कि इवेंट इस तरीके से करना है, इवेंट इसके ऊपर डिपेंड है, ऐसे कंडीशन दिया है, देन यू कैन यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट. सो द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल अकर विद द गिवन कंडीशन. यहाँ पे देखो है ना, कंडीशन आपको दिया है दैट ए हैज ऑलरेडी अकर. मींस कंडीशन कैसे दिया है कि ए ऑलरेडी हो चुका है ना, ए जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है. नाउ यू गो फॉर द बी. ओके. तो अगर इसे कंडीशन दिया है तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes sir.
और उसको डिनोट कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे वर्टिकल लाइन और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे जो राइट साइड दिख रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा. जो यहाँ पे हो चुका है उसी का आपको डिनोमिनेटर में लेना है. इफ आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मींस इसमें मेरा बी हो चुका है, तो वो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, सिर्फ डिवीजन जो पार्ट है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. ओके, अब आगे वाली अगर डेफिनेशन में मैं इसको मर्ज करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. जॉइंट प्रोबेबिलिटी के लिए क्या था, देखो ये दोनों का सिंपल प्रोडक्ट था. यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसका सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या आ जाएगा, कंडीशनल फॉर्म आ जाएगा. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यहाँ पे ये थोड़ा आपका चेंज हो गया, उसमें सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. सो इज देयर एनी डाउट इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नो सर. नो सर. ओके, चलो अब यहाँ पे उसके लिए रिमार्क्स है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी गो फॉर द एग्जांपल फॉर द जॉइंट एंड कंडीशनल. तो यहाँ पे देखो रिमार्क फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यहाँ पे बोला गया है. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिमेन्स कांस्टेंट वेदर बी हैज अकर्ड और नॉट, then A and B are independent event. That means probability of जो conditional probability of A on B है is equal to probability of A हो जाएगा. Means अगर आप यहाँ पे जो B आपको कंडीशनल के लिए बोला गया कि B ऑलरेडी हो चुका है और इफ यू वांट टू गो फॉर द A इवेंट A, लेकिन B जो है तो B का जो आउटकम है उसका A के ऊपर कुछ भी लेना देना नहीं है, मीन्स वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, देन ये दोनों का फॉर्म सेम ही हो जाएगा. मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड यूजुअल प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम. क्लियर? लेकिन ये कब होगा, आपको पता चला कि जब B जो है, आप यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B, इसका मीनिंग क्या हुआ, एवरीबॉडी गॉट इट? जो राइट हैंड साइड जो है वो हो चुका है, इट अकर्स ऑलरेडी. ओके, अब यू आर गोइंग टू फाइंड P ऑफ A स्लैश B, मीन्स A का आपको करना है लेकिन उसका डिपेंडेंट B के ऊपर. लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि B का जो अकरेंस है इसके ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, दैट मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट. अगर बोथ आर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड यूजुअल प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम. दैट इज द रिमार्क्स. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. Okay, what about others? Please confirm yourself. Yes, sir. Okay, so तब जाके ये जो डेफिनेशन था वो हमारा यूजुअल जो आगे वाला था जॉइंट वाला सेम हो जाएगा यहाँ पे. ओके, चलो हम एग्जांपल में देखते हैं. यस, देखो एग्जांपल, अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द probabilities of success for the 3 product. मीन्स एक कंपनी है, उन्होंने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका सक्सेस जो है, सक्सेस फॉर 3 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस इन द मार्केट आर 1/3, 2/5 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली. मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका सक्सेस आपको यहाँ पे दिया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है. तो 1/3% ए के लिए है, 2/5 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है एंड 2/3 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है. ओके, अब एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट. यस यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, यस, assuming independence, find one. Please mute yourself, student. If you are not using your mic, then please mute yourself. Assuming independence, okay. તમારે લોકલ ટ્રેન ની ટિકિટ મફત થઈ જાય. रूसी हमको नहीं जानना है आपका डिस्कशन. ओके,
Assuming independence, find number 1 the probability that the 3 products are successful. Means मुझे क्या find करना है, तीनों ही तीनों success हो, ऐसी probability find करना है. Means तीनों ही तीनों एक साथ success हो. Okay. Second, the probability that none of the product is successful. Means मुझे ऐसा भी find करना है कि कोई product successful ही ना हो. तो यहाँ पे हमको दो तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. अब यहाँ पे देखो 3 प्रोडक्ट्स है, तो उसका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है या नहीं है. अगर कोई भी कंपनी 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसमें से 2 सेम होंगे कभी? यस और नो? नो सर. नो, है ना. अगर सेम होंगे तो उसको मार्केट में ला ही नहीं सकते दूसरे नेम के साथ. फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल है रेडमी की बात करें तो रेडमी अभी तो ये आप 12 तक पहुंच चुका है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. वो अगर वो नया नेम नहीं देंगे तो वो लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये तो सेम ही यहाँ पे मार्केट में बेच रहे हैं, है ना, सेम ही थिंग है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट है. दिख रहा है कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर. है ना. और यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस. ओके, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे चलो देखते हैं. तो फर्स्ट प्रोडक्ट को मैंने ए बोल दिया. दैट मीन्स ए मीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, B means second product is successful and C means third product is successful. क्योंकि हमको फाइंड करना था तीनों प्रोडक्ट सक्सेस हो तब. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस रेट उसका कितना था 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 2/3. तो वो तो हमको दिया ही था. अब मुझे क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल. तो तीनों ही तीनों प्रोडक्ट सक्सेस हो. दैट मीन्स आपका केस कैसा हुआ, A and B and C. Yes or no? यस सर. तो ये अगर एंड आया तो हम कौन सा यूज करते थे, इंटरसेक्स. यस, वेरी गुड. तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अलजेब्रा. ओके. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंस है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2/, यहाँ पे इसका जो आंसर है इसे आया हुआ है 1/3 इंटू 2/5 इंटू 2/3. इसका अगर आप टोटल फाइंड करेंगे यू विल गेट योर 4/45. क्लियर एवरीबॉडी? फर्स्ट केस, that is the successful probability of the 3 products are successful. Clear? Is there any doubt in this? No sir. No sir. No sir. Okay, thank you. Next, required probability means second के लिए यहाँ पे second case. तो यहाँ पे देखो none of the product is successful. तो मेरे पास पहले प्रोडक्ट का सक्सेसफुल है, सेकंड का है, थर्ड का है. तो अभी एक स्टूडेंट ने बोला था ना लास्ट एग्जांपल में कि सर इसका 1 से माइनस करके ले ले. तो वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है. देखो मुझे यहाँ पे कोई भी सक्सेस ना हो ऐसा फाइंड करना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, यस और नो? यस सर. है ना. तो उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हम 1 ही ले सकते हैं और उसमें से उसका सक्सेसफुल वाला निकाल देते हैं. दैट मीन्स 1 माइनस 1/3 हुआ तो कितना हो जाएगा 2/3 हुआ कि नहीं? Yes sir. तो दैट इज द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. यस और नो? Yes sir. देन ए कॉम्प्लीमेंट का हो गया. बी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस 2/5, सो इट गिव्स यू 3/5. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/3. सो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा. एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी से पी ए कॉम्प्लीमेंट with P B complement with P C complement. दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा 2/3 इंटू 3/5 इंटू 1/3 और आप यहाँ पे 3 को कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 2/15. दिस इंडिकेट्स द
probability that none of the product is successful. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, No sir. doubt. Okay, yes. Next example. Yes, देखो next example हम जो खेलते हैं वही है. In two successive throw of pair of dice. Okay, means मेरे पास dice है लेकिन पैर है. Okay, उसकी दो पैर है तो means दो dice है मेरे पास. Determine the probability of getting a total of 8 each time. कितना मुझे चाहिए टोटल? 8 चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं वन टाइम डाइस को थ्रो करता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6. सेकंड उसी के साथ दूसरा भी डाइस मैंने थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 एंड 6. लेकिन दो डाइस अगर एक साथ थ्रो करता हूँ तो एक दूसरे के ऊपर कुछ डिपेंडेंस है कि इसमें 3 आया तो इसी में 3 आएगा, इसमें 4 No, आया तो sir. इसी में. नो, दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट. यस और नो? आपका जो क्वेश्चन था ना एक स्टूडेंट का कि सर इंडिपेंडेंट इवेंट दिया गया होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया गया होगा. अंडरस्टैंड? क्लियर? पता चल रहा है ना आपको? यस सर. है ना. अब यहाँ पे देखो क्या है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8. अब दोनों का एडिशन 8 हो ऐसी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो मुझे डिनोट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 इन फर्स्ट थ्रो. मीन्स आप फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हो तो आपका ए लिया है. एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 इन सेकंड थ्रो. मीन्स दूसरी बार आपने थ्रो किया है उसमें भी 8 चाहिए, इसे आपको चाहिए. ओके, तो यहाँ पे देखो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स मुझे 8 फर्स्ट थ्रो में चाहिए. ऐसा कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? 6 इंटू 6 होगा. फर्स्ट डाइस का 6, इसका 6 है ना. तो 6 इंटू 6 कितना हुआ? 36. ओके, अब यहाँ पे 8 करना है तो यहाँ पे 8 मीन्स 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, फेवरेबल पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे देखो ये दोनों को अगर मैं एक सेट में लिखूं और उसमें से मुझे 8 हो, ऐसे मुझे सारे यहाँ पे चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं 1 एंड 6 करूँ तो 8 होगा? नहीं होगा ना टोटल. No, sir. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे 1 6 नहीं ले सकते. दैट मीन्स 2 6 ले रहा हूँ. चलो तो 8 हो गया. यस है ना? सर. तो यहाँ पे 6 2 लू तो भी 8 होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर. अब दूसरे मुझे आप सेट बताओ. चलो मैंने तो यहाँ पे आपको 2 दिखाए, अब दूसरे सेट दिखाओ तो मुझे. 3 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5. वेरी गुड. और उसके बाद 4 4 भी मैंने सुना. यस, वेरी गुड. अब कोई बाकी बचा? सर 4 4 मतलब अगर हम डाई 1 और डाई 2 का अलग से ले तो 4 4 2 बार आएगा. 4 4 2 बार नहीं आएगा ना, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तो एक ही हुआ ना. नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा. अगर डाई 1 और डाई 2 का मतलब इंडिविजुअल अलग. समझ गया, मैं समझ गया. आप बोल रहे हो कि सर मैंने एक बार 4 आया तो दूसरा डाइस का भी मुझे 4 आया है ना. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसका पॉसिबिलिटी तो 1 ही हुआ ना. मीन्स 4 4 ही आ सकता है ना सेकंड टाइम जब भी आएगा तब. हाँ. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट डाइस का 2 आया, सेकंड का 6 आया, इसलिए यहाँ पे हमने 2 बार उसको लिखा है. लेकिन 4 4 मीन्स अगर मैं 1 को बोलूँ या 2 को बोलूँ वो तो सेम ही होगा ना प्रोसेस. अंडरस्टैंड? हाँ. इसलिए मीन्स प्रोबेबिलिटी तो उसका 1 ही हुआ ना. मीन्स ये यही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. अब कोई बाकी छूटा? नहीं. तो यहाँ पे फेवरेबल कितने हो गए मेरे? मुझे 8 करना था, इसे 5 हो गए ना एवरीबडी. यस सर. है ना. तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 5/6 इंटू 6. सिमिलरली बी का भी मुझे वही का वही मिलेगा कि नहीं? सेकंड टाइम कर रहा हूँ तो, सेकंड थ्रो कर रहा हूँ तो. यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना.
अब ये सेकंड टाइम क्यों किया, उसका रीजन यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो मैं वो भी डिस्कस कर। देखो 2 सक्सेसिव थ्रो बोला है, मीन्स आपको फर्स्ट टाइम भी करना है, सेकंड टाइम भी करना है। यहाँ पे 3 सक्सेसिव होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आता। अंडरस्टैंड? मतलब सर Yes, sir. दो डाइस मतलब सर दो डाइस 2 बार फेंकी। यस यस यस, यू आर राइट। ओके, मीन्स 2 डाइस मेरे पास है, उसको मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने उसको थ्रो किया। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी मेरे पास है। उसके बाद मैंने वही 2 डाइस फिर से थ्रो किया, दैट मीन्स 2 सक्सेसिव थ्रो हुआ कि नहीं? गॉट इट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे पता चला आप लोग शांत हो गए तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। है ना? ओके। Yes, अब sir. हाँ, अब क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। ईच टाइम मीन्स क्या चाहिए मुझे? ए में भी चाहिए, बी में भी चाहिए कि नहीं? आर यू गेटिंग? यहाँ पे देखो, यस सर। ईच टाइम का आप इसका अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो ए एंड बी ऐसा होगा कि नहीं? दोनों में चाहिए। अगर उन्होंने बोला कुछ दूसरा बोला होता तो बीच में और जैसी सिचुएशन होती ना, लेकिन मुझे तो ए में भी चाहिए, बी में भी चाहिए। क्या चाहिए? 8 होना चाहिए टोटल। ओके, ए भी 8 होना चाहिए, बी में भी 8 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे और नहीं आ सकता, क्या आएगा? एंड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस सर। यस है ना? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इज इक्वल टू, अब एक दूसरे के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए कंडीशनल नहीं आएगा, सीधा जॉइंट आएगा। दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 25 एंड नीचे 36 इंटू 36 1296। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? नो सर। ओके, अब ऐसे स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा चेंज करना है तो मैं यहाँ पे 3 कर सकता हूँ, यहाँ पे 8 की जगह पे 7 कर सकता हूँ, या फिर 5 कर सकता हूँ, है ना? तो इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, है ना? तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको थोड़ा स्टडी करना है। अगर आपने वो समझ लिया देन यू कैन डू वेरी वेल। ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट जल्दी करते हैं। अब देखो, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, मीन्स 1000 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, मीन्स उसमें से 430 तो गर्ल स्टूडेंट ही है। ओके, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन द क्लास 12, मीन्स क्लास 12 में जो 430 गर्ल्स था उसमें से 10% क्लास 12 में वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12? मीन्स अगर आप कोई भी स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट को मीन्स आप पिकअप करते हो, है ना, सिलेक्ट करते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 12 क्लास में भी होगा, है ना? गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, मीन्स आपको ऐसा दिया गया है कि आपको गर्ल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। क्लियर एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? यस यस है ना? सर। ओके, हाँ, गर्ल का है तो गर्ल तुरंत कैसे बोले देखो। ओके, चलो, लेट ई डिनोट द इवेंट दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीइंग इन द क्लास 12, मींस मुझे यहाँ पे 2 एक साथ हो रहा है। देखो, मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर आप लास्ट स्टेटमेंट आप केयरफुली अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मर्ज करके दिया है। क्या दिया है कि पहले मुझे रैंडमली जो सिलेक्ट करना है, चूज करना है रैंडमली, ओके, क्लास 12 में से, तो उसको एक इवेंट बोल सकता हूँ कि नहीं मैं? यस सर। ओके, एक ही बच्चे को पता चला, बाकी सबको क्या हाल है? नहीं पता चला ना? समझ नहीं गया सर। हाँ, ओके, चलो यहाँ पे सिंपल में एक बात बताता हूँ, आप सिर्फ यही फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, उसका बाद में हम हमारे एग्जांपल में बाद में चलते हैं। मेरे पास 10 बॉल है, ओके, एक बॉक्स में, उसमें रेड एंड ब्लैक 2 तरीके के बॉल है। ओके, अब रेड एंड ब्लैक जो है उसमें से मुझे नहीं पता है कि मैं जो भी उसमें से पिकअप करूंगा वो कौन सा होगा, तो वो रैंडमली हुआ कि नहीं?
यस सर। है ना। अब रैंडमली पिकअप करना है तो वो एक इवेंट हुई कि नहीं, उसके बाद मैं उसका रिजल्ट बोलूंगा कि वो रेड है या ब्लैक है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। है ना। तो अब पहली इवेंट क्या है कि 12 स्टूडेंट, क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उसी में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, वो चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, बाद में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट क्या है इवेंट कि आपको 12 स्टूडेंट का कोई 12 स्टैंडर्ड का कोई एक स्टूडेंट को आपको पिकअप करना है, मीन्स उसमें से आपको चूज करना है। तो दैट इज फर्स्ट इवेंट। यस और नो? नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब सबको पता चला कि नहीं? यस सर। है ना। अब उसके बाद मुझे सेकंड्स, यस यस बेटा, यस। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, वो वर्कशॉप है हमारा ईओई का। वो 10 o'clock तक तो मेरा ही टाइम है ना बेटा, अभी तो 9:59 के बाद है। ओके। कौन सी ब्रांच को स्टार्ट हो गया? डी को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो यू कैन गो ओके। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को भी स्टॉप कर देता हूँ ये एग्जांपल डिस्कस करने के बाद। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल आप वीडियो में देख लेंगे ना, उसके बाद में बैच थ्योरम बाद में करेंगे, चलेगा? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, बाकी के स्टूडेंट यहाँ पे देखो। तो मुझे क्या करना था, 12 स्टूडेंट में से मुझे कोई एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना था, तो दैट इज माय इवेंट ई। ओके, अब मुझे क्या करना था, उसमें से गर्ल ही होगा, दैट इज माय सेकंड थिंग। देखो, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, मींस वो जो सिलेक्ट किया है वो गर्ल ही होगा, वो मुझे ऐसा आपको एज्यूम करना है, मींस ऐसा आपको सिलेक्शन करना है, ऐसा आपको चूज करना है। ओके, तो दैट इज माय सेकंड इवेंट एफ। तो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? नो सर। ओके, अब यहाँ पे देखो। हाँ, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडीशन आ गया कि मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन कौन सा होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडीशन आया, दिख रहा है? यस। है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है कि E/F मीन्स आपका F हो चुका है, मीन्स आपने गर्ल को सिलेक्ट कर दिया है ना, और E आपको सिलेक्ट करना है रैंडमली, मीन्स मुझे गर्ल ही सिलेक्ट करना है, ऐसे आपको यहाँ पे बोला गया है। दैट मीन्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F करना है, तो ऊपर आएगा वो दोनों का इंटरसेक्शन एंड नीचे आएगा जो हो चुका है, मींस एफ का प्रोबेबिलिटी। ओके, तो वो दोनों यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा कि एक स्कूल है, उसमें से 430 गर्ल है और 1000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे फेवरेबल 430 हुआ एंड टोटल 1000 हुआ, दैट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यस और नो? यस। है ना। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा? तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F मींस जो यहाँ पे आपको बोला था ना, इट इज नोन दैट द आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12। तो 430 का 10% कितना होता है? 43। That is my intersection. So 43 and divide by total number, that means 1000. That is the probability of E intersection F. Yes or no? Yes. Okay, so conditional probability of E on F equal to 0.0043, इसका जो आंसर आया वो डिवाइड बाय 0.43 एंड इट गिव्स यू 0.1। तो अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें से गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1%। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? सर Yes, sir. रैंडमली चूज कर रहे स्टूडेंट को 1000 स्टूडेंट्स में से कर रहे हैं कि 430 गर्ल्स में से? नहीं, 1000 स्टूडेंट में से। ओके सर, है ना, एक ही स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है। यस। नहीं, सॉरी, नॉट 1000। क्लास 12 के जो स्टूडेंट है वही। यस, ओके, क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उसी में से सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे क्लास 12 के ऊपर फोकस करना है। गॉट इट? सर
यस यस बेटा, हमने P ऑफ F और P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाला। हाँ उसके जगह पर उन्होंने अगर सीधे तरीके से दिया है कि 10% गर्ल्स 12th क्लास में स्टडी करती है, हाँ तो सीधा ही हम 10% निकालेंगे तो 43 गर्ल्स होंगे। और उन्होंने कहा ही है कि रैंडमली चूजन स्टूडेंट शुड बी गर्ल ऑफ क्लास 12th। तो आउट ऑफ 430 गर्ल्स 43 पढ़ते, तो वो सीधा 43/430 हम नहीं कर सकते। इसमें 2 बार प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या जरूरत है? 2 बार कंडीशनल यूज करना था इसीलिए निकाला। ओके ओके डन, क्लियर हाँ है ना। यहाँ पे हमने कंडीशनल यूज किया, स्टेटमेंट जो है टोटली कंडीशनल है इसीलिए। तो मतलब इस तरीके से करेंगे तो गलत होगा सर? गलत होगा बेटा, क्योंकि आपने क्या किया कि 43 आपकी गर्ल स्टूडेंट है, ओके, डिवाइड बाय आपने कर दिया टोटल गर्ल स्टूडेंट, दैट मीन्स 430 है ना। हाँ सर। है ना, तो आपका आंसर आ गया 1/10 और 1/10 का हो जाएगा 0.1। आपका आंसर सही लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है उसमें आपको नहीं बोला है कि गर्ल ही होना चाहिए, बाद में बोला है ना। दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। मीन्स आप जो सिलेक्ट करो 12th स्टैंडर्ड में बॉय भी होंगे गर्ल भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सीधा गर्ल पे फोकस कर रहे हो, तो हाउ यू कैन जस्टिफाई इट। फेवरेबल में तो आपने वही लिया ना। हाँ। और यहाँ पर भी आपने वही लिया, गर्ल के ऊपर ही फोकस किया। तो व्हाट अबाउट बॉयज? नहीं तो फिर ये 1000 देने की जरूरत ही नहीं थी ना। अंडरस्टैंड? हाँ। है ना। तो जो भी डेटा दिया है उसमें से पहले समझो कि जो डेटा दिया है उसको तो मुझे कहीं ना कहीं यूज तो करना ही है। अगर कहीं ना कहीं आपने उसमें लैग कर दिया, देन योर एग्जाम्पल विल बी रॉन्ग। ओके, क्लियर? क्योंकि कहीं ना जो डेटा दिया है उसका तो मुझे यूज करना होगा, तभी तो वो डेटा दिया होगा ना। डन? यस सर। है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया। ये अगर आप जाते तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला ये एग्जांपल हुआ, तो वहां पे आपको ये 1000 दिया ही नहीं होगा, सीधा बोला होगा कि द स्कूल हैज द 430 गर्ल एंड उसमें से ये 10% 12 क्लास में है, देन फाइंड आउट दिस। ओके डन सर। ओके हाँ यस यस सर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश F जो कंडीशन है, हम उसको अगर सॉल्व करें तो P ऑफ E इंटरेक्शन F का P ऑफ E इंटू ये वाला, हाँ उसके बदले P ऑफ E इंटू P ऑफ F लिखे और P ऑफ F कैंसिल कर दे तो P ऑफ E आएगा ना। देखो बेटा, यस आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैंने P ऑफ E इंटू P ऑफ F कर दिया डिवाइड बाय P ऑफ F, तो सर P ऑफ F तो चला गया ना, आप ऐसा बोल रहे हो ना बेटा। सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए ना उसके। यस तो यहाँ पे रिमार्क में तो वही दिखा ना बेटा कि ये कब यूज करना है आपको, जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तब। यहाँ पे तो टोटली डिपेंडेंट है, देखो है ना। अब सिलेक्ट कर तो फिर नहीं यूज कर सकते ना, इसलिए तो कंडीशनल यूज किया। नाउ अंडरस्टैंड? ओके चलो नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल करके। ओके इसके बाद तो ये तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये होमवर्क में दे देता हूँ। इसके बाद वाला देख लेते हैं, चलो। हाँ, a die is thrown twice and the sum of the number appears is observed to be 6। ये तो हमने कर दिया ना, सिमिलर ही है, कर सकते हैं ना आप। इसको होमवर्क में ले लेता हूँ। 8 वाला किया ना हमने, एवरीबॉडी? हाँ सर। है ना, इससे ये तो इसको आप देख लेना। तो नेक्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, बॉल वाला है इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं। A bag contain 3 red and yes ये तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। A bag contain 3 red and 4 white balls। ओके तो मेरे पास टोटल कितने बॉल्स है? 7 है ना। 7 में से 3 रेड है एंड 4 व्हाइट बॉल है। अब 2 ड्रॉज आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा?
सर यानी हमने एक बॉल पिक कर लिया तो हम लोग ने उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया और उसमें से वापस दूसरा पिक कर रहे हैं। यस मीन 7 में से अगर आपने कोई एक पिक कर दिया तो 6 बचे ना, उसके लिए आपको नेक्स्ट करना है। डन एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीन 7 आपके पास बॉल थे, उसमें से कोई एक आपने पिक कर दिया तो अब बाकी जो बचे 6 उसके लिए आपको नेक्स्ट के लिए डील करना है। तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशनल हो गया एवरीबॉडी। यस सर। मीन्स मेरी जो फर्स्ट इवेंट है उसका दूसरी इवेंट पे लेना देना है, दैट मीन्स इट शुड बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में तो सब कुछ साथ में आएगा, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द मेथड। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड? मीन्स अब मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों बॉल रेड हो। ओके एवरीबॉडी? यस सर। कितने ड्रॉ करना है मुझे? 2 ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं एक ए बोल दूंगा, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड इन द फर्स्ट ड्रॉ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स कितना हो जाएगा? फेवरेबल डिवाइड बाय 7। उसमें से मुझे रेड लेना है तो रेड फेवरेबल 3 है, सो 3 बाय टोटल हो जाएगा 7। इज इट क्लियर? पी ऑफ ए एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब बी के लिए देखते हैं। यस, बी के लिए देखते हैं। तो लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इन द सेकंड रो गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। मींस यहाँ पे मुझे बोला है कि फर्स्ट यहाँ पे मुझे लेना है कि दोनों रेड के लिए फाइंड करना है ना स्टूडेंट? यस सर। है ना? यस सर। तो जो मैंने पहले सिलेक्ट कर दिया है वो ऑलरेडी रेड होगा, तभी दूसरा रेड होने की संभावना हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो ड्रॉ इज रेड, फर्स्ट मेरा रेड है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरे पास 6 बॉल हो गए अब, और उसमें से एक बॉल तो रेड हो ही चुका है, तो टोटल रेड बॉल 2 हुए, दैट मीन्स 2/6 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए एवरीबॉडी? यस सर। अब दोनों रेड होने के लिए क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। यहाँ पे ए का प्रोबेबिलिटी 3/7 है, इसका 2/6 है, तो वी हैव 1/7। यस और नो? सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम बेस थियरम यूज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज क्लास? एनीबॉडी? नो डाउट। नो सर। ओके, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा प्रेजेंटेशन।